Hello friends, thanks for clicking my channel. In this video we are going to discuss Jane Austen and her important novels. If you haven't subscribed my channel yet, please do subscribe it because I'm going to publish so many videos on literature, IELTS and English grammar. So let's start the video now. Which novel by Jane Austen was published posthumously? Posthumously means after her death. Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Northanger Abbey or Mansfield Park. So correct answer is Northanger Abbey. It was published in December 1817. And these are some important points on her novels. Her novel Persuasion was also published posthumously, means after her death in 1817. This was last fully completed novel by her. Okay, both novels Northanger Abbey and Persuasion are Gothic novels. Okay, जो इनकी novels हैं Northanger Abbey and Persuasion, these are called Gothic novels because there is a satire and parody on horror novels in these novels. Okay, Anne Elliot and Frederick Wentworth are main characters in the novel Persuasion. So Persuasion में जो main hero and heroine है उनके names हैं Anne Elliot and Frederick Wentworth. How many films have been made on her novels? So Jane Austen के novels पर फिल्में बन चुकी हुई हैं and these are the names of her novels. Pride and Prejudice, it was published it was released in 1940. Okay, and कुछ recent publications हैं productions हैं उनके novels की जिनकी फिल्में बनी हुई हैं. These are Sense and Sensibility, Emma, Mansfield Park, Pride and Prejudice, Love and Friendship and Emma. Please remember the years of these movies. Who wrote Emma? Okay, Jane Austen wrote Emma novel. It was published in 1815. It is in 3 volumes. Okay, and marriage, age, social status issues are depicted in this novel. Emma Woodhouse, ठीक है, इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एमा वुडहाउस जो एक रिच लेडी है एंड जॉर्ज नाइटली एक स्क्वायर है. ओके, एंड हर मेंटर. स्क्वायर होता है एक पार्सन. स्क्वायर मीन्स एक लैंडलॉर्ड. ओके, लैंडलॉर्ड और उसका मेंटर होता है. मेंटर मीन्स गाइड. तो ये 2 मेन कैरेक्टर्स हैं एमा के, आपने याद रख लेने हैं. डैशवुड सिस्टर्स एलिनर, Marian are found in which novel by Jane Austen? ठीक है, सो डैशवुड सिस्टर्स हैं एलिनर और मैरियन. तो ये कौन से नॉवल में है जेन ऑस्टन के? ओके, इसका आंसर है सेंस एंड सेंसिबिलिटी. ये एंड है. ओके, गलती से एंड से लिखा गया है. सेंस एंड सेंसिबिलिटी. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1811. इट इज़ अ रोमांटिक नॉवल. In which novel by Jane Austen we find Marian, John, Willoughby, Colonel Brandon and Edward Ferrars? ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं किस नॉवल में हमें मिलते हैं? सेंस एंड सेंसिबिलिटी में. सो प्लीज रिमेंबर दीज नेम्स. हर जुवेनिलिया वर्क्स. जुवेनिलिया मीन्स जब वो एडोलेसेंट थी, ठीक है, एडोलेसेंट एज में थी, टीन एजर में थी, तब उन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे? ओके, सबसे पहला है लव एंड फ्रेंडशिप. ओके, 2016. ओके, इट वाज पब्लिश इन 2016. लव एंड फ्रेंडशिप एक्चुअली जो है दैट इज़ हर ओल्ड वर्क. इट वाज रीपब्लिश्ड इन 2016. ओके, एक्चुअली जो डेट थी इसकी ओरिजिनल डेट दैट इज़ 1790. It is a juvenile story by Jane Austen. She wrote it from age of 11 to 18. Okay, it is an epistolary novel like Lady Susan. एक epistolary novel है. Epistolary means a series of letters. Okay, she wrote
The History of England. Okay, it was published in 1791 when she was 15. It is a burlesque work. ठीक है. The Beautiful Cassandra is a short novel by Jane Austen. It is a parody of the melodramatic, sentimental and picaresque novel of the time. Okay, Beautiful Cassandra एक short novel उनके द्वारा एक parody है. Okay, so remember this. In which year Pride and Prejudice was completed by Jane Austen. Okay, it was completed in 1797 but published in 1813 because it was rejected by publishers. Okay, तो ये 1797 में ही complete हो गया था but published later on in 1813. The reason was that women writers were not allowed to publish her novels or any creation of literature at that time, so it took time to get published. The earlier name of the novel Pride and Prejudice was First Impressions. तो जो प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल था इसका जो पहला नेम था वो था फर्स्ट इम्प्रेशंस बट लेटर ऑन इट वाज चेंज्ड. ओके, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ द नॉवल सेंस एंड सेंसिबिलिटी. सेंस एंड सेंसिबिलिटी का भी एक अर्लियर नेम कोई और था, वो क्या था? इट वाज एलिनर एंड मैरियन. ठीक है, इट वाज कंप्लीटेड इन 1795 बट पब्लिश्ड इन 1811 as with new name Sense and Sensibility. What was the earlier title of Northanger Abbey by Austen? तो Northanger Abbey जो नॉवल है इनका उसका भी एक अर्लियर नेम था, टाइटल था, वो क्या था? It was written in 1798 to 99. The name of it was Susan. Okay, Susan नेम था इसका, but later on it was retitled as कैथरीन. ठीक है, इसका बाद में नेम जो था कैथरीन रखा गया एंड फाइनली इट वाज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली विद अ न्यू नेम नॉर्थएंगर एबे. तो इनके आपने दो नेम्स जो याद रख लेने हैं, क्या थे नॉर्थएंगर एबे के अर्लियर. ओके, हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन नॉर्थएंगर एबे? कौन है मेन कैरेक्टर इसमें? आंसर इज कैथरीन मोरलैंड. डॉटर होती है वो एक पार्सन की, एक पादरी की. ओके, जो चर्च का हेड होता है. एंड सेकंड कैरेक्टर इज हेनरी टिलिनी. ओके, वो उसका मेंटर होता है और गाइड होता है नॉवल में. हु एडिटेड द लेटर्स ऑफ जेन ऑस्टन? जेन ऑस्टन की लेटर्स को एडिट किसने किया था? डेरिड्री ले फे ने. ओके, In which novel by Austen we find Bennet sisters? So कौन से नॉवल में Bennet sisters आती हैं? The answer is Pride and Prejudice. It was published in 1813. So इसमें इस स्टोरी में 5 sisters हैं. ओके, Jane, Elizabeth, Mary, Charlotte and Lydia. ओके, Lydia सबसे छोटी होती है और जो इसमें मेन हीरोइन है, मेन कैरेक्टर जो है वो है एलिजाबेथ. वो मेन कैरेक्टर है इसमें. हु आर मेन कैरेक्टर्स इन ऑस्टन्स नोवेल मैंसफील्ड पार्क? सो मैंसफील्ड पार्क में कौन कौन मेन कैरेक्टर्स हैं? फैनी प्राइस मेन कैरेक्टर है. शी इज़ डॉटर ऑफ अ पुअर फैमिली बट शी लिव्स विद हर अंकल एंड आंट्स फैमिली, द बर्टन फैमिली. ओके, तो फैंसी प्राइस एक गरीब घर की लड़की होती है जो अपने मौसा जी और मौसी के पास रहती है. ओके, अंकल एंड आंट के पास, क्योंकि वो गरीब होती है. हिज फादर इज़ ड्रंक एंड एक्चुअली ही इज़ ए नेवल बट वो ड्रंक होता है, शराबी होता है, तो दैट्स वाई उसको अपने अंकल आंट के वहाँ भेज दिया जाता है रहने के लिए. एंड द बर्टम सिस्टर्स कौन कौन है इसमें? बर्टम सिस्टर्स जो उसकी आंट और अंकल की बेटियाँ हैं वो है मारिया एंड जूलिया. ओके, एंड देयर ब्रदर टॉम. ये 3 बंदे होते हैं वहाँ पर और बच्चे जो उसके कज़न हैं. एंड हर अदर आंट
मिसेस नॉरिस, ये भी इस नॉवल में आती है कैरेक्टर मिसेस नॉरिस, ठीक है। शी हेट्स हर। एंड एडमंड होम फैनी लाइक्स, तो एक एडमंड एक कैरेक्टर है जिसको फैनी लाइक करती है इस नॉवल में। हाउ मेनी नॉवेल्स वर पब्लिश्ड बिफोर ऑस्टन्स डेथ, ऑस्टन की डेथ से पहले कौन कौन से नॉवल पब्लिश हो चुके थे? सो आंसर इज 4 नॉवेल्स वर पब्लिश्ड बिफोर हर डेथ, जब वो जिंदा थी। वो हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1811, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813, मैन्सफील्ड पार्क 1814 एंड एमा 1815। ओके, तो ये नॉवल बहुत पॉपुलर हुए थे इनके। एंड हर नॉवल सेंडिटन दैट वॉज इनकम्प्लीट एट द टाइम ऑफ हर डेथ, तो वो सेंडिटन लिख रही थी जब इनकी डेथ होगी, सो दैट रिमेन्ड इनकम्प्लीट but later on it was completed. So thank you for watching this video. I hope you like it. Please comment में बताइएगा how was that video. Okay, thank you. God bless you all.